الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما رزقناكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اسے رستے تو لنگنا چاہیدا ہے. جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اسے رستے تو لنگنا چاہیدا ہے. تے جڑا پاک نبی دی کرے گستاخی، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے. قرآن و سنت دے رنگ وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے.
تے جگ رس دیا عابد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد کما صلی انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج ایک بڑے اہم عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے، رزق حلال دیاں برکتاں، رزق حرام دیاں نحوستاں۔ دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے مخلوق دے نال دو وعدے کیتے نے، ایک وعدہ عام ہے، دوجا وعدہ خاص ہے۔ جیڑا وعدہ خاص ہے او اللہ نے اپنے خاص لوگاں نال کیتا ہے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، صالحین صالحات دے نال۔ او وعدہ ہے جنت دا، اور جیڑا رب نے وعدہ عام کیتا ہے او جانوراں لئی بھی ہے اور سب انساناں لئی ہے، چاہے او رب نو مندے نے یا رب دا انکار کردے نے۔ او وعدہ ہے رزق دا، ہر چیز نو رزق دین والی ذات اللہ دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیتا، اللہ تیری مخلوق لئی میں کھانا بنانا چاہنا، نہیں کھانا دے سکدا، یا اللہ مینوں اجازت دیتی جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، بڑا لمبا دسترخوان، بڑی تیاری، اور ویکھو رب دی مخلوق دی دعوت کرنی ہے اور رب دی مخلوق نو ہی ذبح کیتا جا رہا ہے۔ ہوا چل گئی، کھانا خراب نہ ہوئے، خشکی والی مخلوق آئے یا تری والی آئے، یا اللہ تری والی آئے، ایک مچھلی آئی، ایک سائڈ تو بیٹھی، ایک لقمے وچوں سارا کھانا مکا گئی۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت نال فرمایا کہ تو کلی سارا کھا گئی ہیں؟ تے انہیں عرض کیتی، اللہ دے پیغمبر جڑے میزبان ہوندے نے وہ مہماناں نال انج نہیں بول دے۔ تے عرض کیتی، یا اللہ سب نو رزق دین والی تیری ذات ہی ہے، رزق دا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ نے اٹھایا ہے۔ آؤ میں دے تے اللہ دا قرآن پڑھ کے دلیل دیاں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا جتنے بھی زمین تے چلن والے نے سب دا رزق ساڈے ذمے ہے، اسی ہر چیز نو رزق پہنچانے ہاں۔ اے کون نے؟ انہاں نو اللہ دا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے۔ ہاتھ دے اندر آساں پکڑے تے عرض کیتی، ربا
तू अपनी मखलूक नू किस तरह रिज़क पहुंचाने। फरमाया ऐ जेड़ा आसा है इनू पत्थर ते मार। पत्थर ते मारिया विचू एक होर पत्थर निकल आया। फरमाया एदे ते मार। ओदे विचू एक होर पत्थर निकल आया। फरमाया एदे ते मार। ओदे विच मारिया एक होर पत्थर निकल आया। फरमाया हुण एनू आसा मार। ओनू आसा मारिया विच एक कीड़ा पितंग है और ओदे मुंह दे अंदर सब्ज पत्ता है। फरमाया हर एक नो रिज़क पहुंचाना साडे ज़िम्मे है। ए असी वादा कीता है जे तुहाडा ज़ौक होवे तवज्जो पूरी होवे ते मैं इंज कहना चाहना ज़िम्मा रिज़क दा रब ने उठाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। ज़िम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। ज़िम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। एहो रब दे कुरान समझाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। जिवें बंदिया तेरा सर है गए एवें रब रहमान दा दर एक है। एवें रब रहमान दा दर एक है। एवें रब रहमान दा दर एक है। तेरे सर नू भी रब ने बनाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। ज़िम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। एहो रब दे कुरान समझाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। ओ शारग तू नजदीक दिसे ओदा जग विच कोई ना शरीक दिसे। ओदा जग ते कोई ना शरीक दिसे। ओ कुफुवन अहद कहलाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। ज़िम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा कोलू क्यों मंगने। आप दे मुबारक फरमान दा मफहूम अर्ज करना कि जदों बच्चा 4 महीने दा हो जाए ओने जिन्ना भी रिज़्क खाना है अल्लाह ताला ओ लिख देंदे ने। जो भी दुनिया ते उन्हें लुकमा खाना है वो लिखिया जाता है। जो रिज़क साडे मुकद्दर विच है ना वो मिल के ही रहना है। ते की लोड़ है अल्लाह दे हुक्म नू छड़ के दुकान खोलन दा। की तुक बनदा है रिश्वत लैण दा। की तरीका है कि बंदा सूद खाए। जो रिज़क मुकद्दर च भी लिखिया वो मिलना ही मिलना है। उदों तक मौत नहीं आनी जदों तक के रिज़क मुकम्मल नहीं होना। और अगली गल भी पूरी तवज्जो नाल सुनना। रिज़क बंदे नू इंज ही तलाश कर लैंदा है जिवें मौत तलाश कर लैंदी। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा। ए कौन ने इन्हां नू हज़रत मुआज कहंदे ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जिवें मेरे भाइयों नमाज फर्ज है ना, रोज़ा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, एवें हलाल रिज़्क कमाना भी फर्ज है। फरीज़तुन
बादल फरीजा औ कमा काल, ए हलाल कमाना ए फर्ज है। ते जे बंदा फर्ज अदा करे तो सवाब मिलता है या नहीं? सवाब मिलता है। जेड़ा बंदा हलाल तरीके नाल कमा रहा है वो नेकियां कमा रहा है, उन्होंने सवाब मिल रहा है, अजर मिल रहा है। ऐ जरा देखना, हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ते आपने देखिया कि हत्थां ते चंडियां पईयां ने ते फरमाया मुआज ए हत्थां ते क्यों चंडियां पईयां ने? ते अर्ज कीती आका जान मैं लकड़ी दा काम करना, इस वजह तू हत्थां ते चंडियां पईयां। गौर करना उस्मान मस्जिद विच आण वालिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ हाथ पकड़िया और अपने मुबारक होंठा नाल लाया। ओए मेरे नबी दे लब ने, ए मेरे नबी दे होंठ, एना दी सुर्खी अल्लाहु अकबर वेख के ते कोसे कज़ा दे रंग भी शर्मा जांदे ने। ए मेरे नबी दे होंठा दी लाली वेख के ए गुलाब दी सुर्खी भी शर्मा जांदी है। ए मेरे आका ने अपने मुबारक पिंक होंठा नू हजरत मुआज दे हाथ नाल लाया ते बोसा दिता, फरमाया हुण एदे ते अग हराम है। मैं कहना कि हजरत मुआज दी बड़ी अजमत के आप दे हाथ नो मेरे आका ने बोसा दिता ते मैं ओना दी अजमत तू भी सदके जा के जिन्ना दिया होंठा नू मेरे नबी ने बोसा दिता। ए कौन ने इन्हां हसन ते हुसैन कहंदे ने? इन्हां दी अजमत ते शान दी भी क्या बात है। मैं गल अर्ज कर रहा कि आपने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह के कमान वाला ए रिज़्क़े हलाल कमान वाला अल्लाह दा दोस्त है। अल्लाह दा दोस्त है। मेरे भाइयों, रिज़्क़े हलाल दियां बड़ियां बरकतां। शुरू करिए, है तवज्जो। रिज़्क़े हलाल दी पहली बरकत, अल्लाह दा कुरान पढ़िए। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि या अय्युहर रुसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वामलू सालिहा। ऐ मेरे रसूलो, ऐ मेरे रसूलो। नबी ते रसूल विच फर्क ये वे कि नबी पहले वाली शरीयत ते लोगां नू अमल करवांदा है और रसूल नवा ला ते कानून ते शरीयत लेके आउंदा है। नबियां दी तादाद बहुत ज्यादा और रसूलां दी तादाद लिखिया है 313 दे करीब करीब। अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया कि पकीज़ा रिज़्क़ खाओ। ये खिताब ते अल्लाह दे रसूलां नू है, पर सब ईमान वालियां नू ये बात दसी जा रही कि पकीज़ा माल खाओ और वामलू सालिहा और नेक अमल करो। पहली बरकत समझ आई कि जे बंदा पकीज़ा माल, तय्यब माल, हलाल माल खाएगा तो अल्लाह नेक अमाल दी देगा। जदों हलाल रिज़्क पेट दे अंदर जाएगा फिर बंदे नू नमाज पढ़न दी तौफीक मिलेगी, रोजा रखन दी तौफीक मिलेगी, सच बोलन दी तौफीक मिलेगी। झूठ, चुगली, गीबत, दूसरियां नू तंग करन,
इन्हां तू बचन दी अल्लाह ताला तौफीक देणगे। ऐ कौन ने? इन्हां नू इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिता। हजरत नू बर्फ दियां बलाकां दे अंदर बंद कर दिता गया ते बादशाह ने आख्या, हाँ अहमद हुण ते वजूद ठंडा होया है ना? ते हजरत ने फरमाया, वजूद ठंडा हो गया पर ईमान पहले नालों भी गर्म हो गया। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिता। ते आप वाल खत लिखिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरा दिल चाहता है मैं तेरे नाल मिला। हाय हाय ओ शागिर्द बड़ियां किस्मतां वाले कि उस्ताद कहन के मेरे नाल मुलाकात कर, पर ए ओ बनदे ने कि जिन्हां ने उस्ताद दी कदर कीती होवे, जिन्हां ने उस्ताद दा अदब ते एहतराम कीता होवे, उस्ताद दियां दुआवां दे नाल अल्लाह फिर बुलंद मकाम अता फरमांदा है। ते हजरत इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ ले आए। सारे उथू दे उलमा इस्तकबाल लई खड़े ने ते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दियां बेटियां उन्हां ने खाना बनाया। अल्लाहु अकबर खाना पेश किया गया ते हजरत ने सारा खाना खा लिया, एक लुकमा भी नहीं बचाया। खूब सैर हो के खाता कि जिवें बंदा कई दिनां दा भुख नाल होवे, इस तरह आपने खाना खाता ते रात दा वक्त हो गया। बेटियां ने बिस्तर ला दिता ते नाल लोटे दे अंदर पानी भी रख दिता कि सुबह तहज्जुद दे टाइम हजरत उठ के वुजू करके तहज्जुद पढ़ लैणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते जदों सुबह होई ते अजीब मंजर देखिया कि लोटा पानी दा उसे तरह मौजूद है। इस तरह लगदा है कि हजरत ने सारी रात सौ के गुजार दी। एक खाना भी खूब सैर हो के खाता। हालांकि जेड़े मुत्तकी लोग ने वो कम खांदे ने, कम सौंदे ने, कम बोलदे ने, और इन्हां ने खाना भी ज्यादा खाता और रात सारी सौ के गुजार दी है। ते अर्ज कर दियां ने, अब्बा जान तुसी कहंदे सो मेरे शागिर्द दियां बड़ियां शाना, मेरे शागिर्द दियां बड़ियां अजमतां, असा लोटा पानी वाला रखिया ओ इसे तरह पिया है। उन्हां ने रात सौ के गुजार दी है। ते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैनू गल दा जवाब दिओ कि तुसी खूब सैरो के खाना खाता और फिर सारी रात सौ के गुजार दी। हालांकि गल्ला मुत्तकी लोगां दे खिलाफ ने। उस्ताद अपने शागिर्द नू पुछ सकदा है। ते हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अर्ज कीता कि मेरे उस्ताद मोहतरम जदों खाना आया ते खाना इन्ना पकीज़ा ते हलाल कमाई वाला सी कि मैं चाहता सी मैं होर खा लवां, मैं होर खा लवां। इंज दा तैयब ते पकीज़ा खाना मेरा बचान नू दिल ही नहीं कीता। और जदों ए खाना खा लिया ते एदियां बरकतां अल्लाह ने मैनू अता फरमाइयां कि सारी रात मैं इबादत विच गुजारी है। इशा दे वजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी है।
ए खाने दी बरकत ए पकीज़ा ते हलाल ते तय्यब खाने दी बरकत के सारी रात मैं गौरो फिक्र करदा रहा। अल्लाह ने इल्म दे दरवाजे मेरे लिए खोल दिते। मैं कुरान मजीद दे विचों 100 मसले निकाले। एक खाने दी बरकत है, पकीज़ा खाने दी बरकत, हलाल ते तय्यब खाने दी बरकत है। ऐ कौन ने? इन्हां नू अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने रहमतुल्लाह अलैह। तुसी नाम सुनिया होएगा, बहुत बड़े मुहद्दिस ने। ते आप दे जेड़े बाप ने ओ गुलाम सन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। फिर एक बाग दे अंदर उन्हां दी जिम्मेदारी लगी बतौरे माली। एक दिन बाद बाग दा मालिक आया मेहमानां नू लैके बाग दे अंदर ते कहंदा है मुबारक अच्छे अनार तोड़ के लिया, मिठे अनार तोड़ के लिया। ते हजरत तोड़ के ले आए, पेश किया। ते जदों अनार चखे ते खट्टे ते मालिक ने बुला लिया कि मुबारक तेनू नहीं पता, मैं तेनू क्या अच्छे अनार लैके आ, तू खट्टे अनार लैके आ गया। ते हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुसी मैनू बाग दी रखवाली लई, इहदी देखभाल लई रखिया, अनार चेक करन लई नहीं रखिया। ते जदों दा मैं इत्थे आया तुहाडे बाग दा एक अनार भी मैं खाधा नहीं। इत्थे जिन्नू माली रख लईए ना, वो समझदा है बाग दा मालिक ही मैं, मेरे लिए जायज़ है मैं जो मर्जी करा। जे दुकान ते मजदूर रख लो, हाँ जी, चीज़ां देने वाला, तो वो आंदा है सारी दुकान है मेरी है। इंज जाएगा कोई शै लैण वास्ते, चौलों का बुक भरिया मूँह विच, खंड चुकी मूँह विच, बिदाम मूँह विच, अखरोट मूँह विच पा लै। ये बात गलत है। इजाजत तो बगैर खाना ये हराम है। उस आख्या इन्ना चिर हो गया तेनू बाग दे अंदर, अज तक तू एक अनार भी नहीं चेक किया? फरमाया नहीं चेक किया। उन्हें मजदूरां दूसरियां नू बुलाया, ए सही कह रहा है? सारिया ने आख्या बैक जबान के ये वाकई सच बोल रहा है, इन्हें अज तक तुहाडे बाग दा एक अनार भी चेक नहीं किया। चले गए ते कुछ दिनां तो बाद ओ बाग दा माली वापस आया। बाग दा मालिक वापस आया ते कहंदा है मेरी बेटी बड़ी नेक है ते मैं चाहना कि मुबारक दे नाल मैं ओदा रिश्ता कर दियां। अल्लाह कहंदे ने कि जदों तुसी मेरे लिए छड्डोगे ना, फिर मैं तुहानू इनाम भी बड़ा देंगा। बाग भी अपना हो गया, बाग दे मालिक दी बेटी अल्लाह ने निकाह विच दे दी ते हलाल रिज्क दी बरकत के अल्लाह ने बेटा बहुत बड़ा मुहद्दिस बना दिता, जिन्हों अब्दुल्ला बिन मुबारक दे नाम तो दुनिया याद करती। ए कौन ने? एक अल्लाह दे नेक बंदे जा रहे ने, एक जगह ते वुजू करन लगे ते नदी दे अंदर ना एक सेब रुड़दा आ रहा सी ते भुख लगी सी। वो सेब उठाया, एक ओदी फाड़ी मुंह दे अंदर पा ली। फिर दिल विच ख्याल पैदा होया कि मैं सेब खा लिया है ते इजाजत लई नहीं, पता नहीं किदा ये सेब सी, मैं वापस जाना। फिर बड़ा लंबा सफर किया। एक उस नदी दे उत्ते बाग आया, पूछया भी इस बाग दा मालिक कौन है? जी इस बाग दा मालिक फलां जगह रहिंदा है। ओदे कोल गए,
ते जाके कहंदे ने कि मैं तेरे बाग दा सेब खा बैठा तेरी इजाजत तू बगैर, ते मैनू माफ कर दे। साडा ते यह काम है ना भी असीं आने भी आ जिहड़ियां गाजरां मूलियां ने ना साडियां सांझियां ही होंदियां, होर कुछ नहीं। तो एवें कणक दे सिट्टे नूं हथ मारिया, सुट दिता मरोड़ के। जे ट्राली गन्ने वाली लग गई तो आख्या भी इत्थों 2-3 गन्ने तो मेरा हक बनता है ना खिंचना। उन्हें आख्या अच्छा सेब माफ कराना है? हाँ जी सेब माफ कराना आया। इंज मैं माफ नहीं करना, इत्थे मेरे कोल बाग दी गोडी करया कर जी। ठीक है मैं करन लई तैयार हाँ। ओ भी दिन पूरे हो गए जी, हुण मैनू माफ कर दिओ। ते कहन लगा मैं नहीं माफ करना, मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी नाल शादी कर। ओदियां अखां कोई नहीं, ओदे कान कोई नहीं, ओदी जुबान कोई नहीं, ओदे हाथ ते पैर कोई नहीं, ते ओदे नाल शादी कर फिर मैं माफ करांगा। ते अल्लाह दे नेक बंदे ने सोचिया कि ए ते दुनिया दियां मुशक्कतां ने, कोई गल नहीं मैं बर्दाश्त कर लेना, आखिरत दियां सजावां नहीं बर्दाश्त होनियां, आखिरत दे अजाब नहीं बर्दाश्त होने। कोई गल नहीं जी मैनू मंजूर है। निकाह हो गया ते आप जदों कमरे दे अंदर तशरीफ ले गए ते वेख्या कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी है, जिदियां अखां भी मौजूद ने, जिदे हाथ भी मौजूद ने, जिदे पैर भी मौजूद ने, कन्ना नाल सुनदी भी है, जुबान तू बोलदी भी है। जल्दी दे नाल बहर निकल आए ते कहंदे ने मैं एक माफ कराण आया, किधरे दूजा होर ना पै जाए। ते कहंदे ने सुसर जी मैनू दसो ना मेरा असल कमरा केड़ा है। ते सुसर जी ने आख्या कि तुहाडा यही कमरा है जी। तुसी आख्या सी बोलदी नहीं, ओ ते बोलदी है, तुसी आख्या सी सुनदी नहीं, ओ ते सुनदी भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते सुसर ने आख्या कि तुसी समझे नहीं, मैं आख्या सी मेरी बेटी बोलदी नहीं, ओने गैर महरम दे नाल अज तक कलाम नहीं कीता। जेड़ा मैं आख्या ओ वेखदी नहीं, जदों दी ओने होश संभालीए ओने गैर महरम नू वेख्या नहीं। मैं आख्या सी ओ टुर नहीं सकदी, ओने अपने घर दी दहलीज तू बाहर कदम नहीं रखिया। मैं आख्या ओने सुनदी नहीं, ओने अपने कन्ना दे नाल ना मुसीकी सुनी ना गाना सुनिया। इसलिए मैं आख्या सी अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाल रिज़्क दी बरकत के शादी हो गई, अल्लाह ने बेटा दिता जिन्हां नू शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी कहंदे ने। असी कहने आ बई माल जिथू आवे लब लो, औलाद नू खवाओ। हराम खवाउणा है ना ते फिर औलाद ने अल्लाह दा वली नहीं बनना, चोर ते डाकू ते नाफरमान ही बनना। ए ज़हन विचों गल निकाल दिओ कि हराम रिज़क दे नाल पलन वाली औलाद कल नूं साडा सहारा बने, साडियां अखां दी ठंडक बने, साडे लई सदका जारिया बने। ए हो ही नहीं सकदा। बड़े वाकयात हलाल रिज़क दियां बड़ियां बरकतां ए कौन ने? आओ मैं बुखारी पढ़न लगा। ए हजरत जुबैर दे बेटे अब्दुल्ला ने, आखो रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे बाप ने वसीयत की कि मेरा बेटा
मेरे ज़िम्मे कर्ज है, ओ कर्ज भी तू अदा करने, ते माल अल्लाह दी राह ते सदका भी करना है, ते मेरियां वसीयतां ते अमल भी करना है। बाप दुनिया तू चले गए। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने कि मैं बाप दी प्रॉपर्टी जमा की ते फिर मैं हौली हौली कर्ज अदा करना शुरू कर दिता। मैं वेखिया कि मेरे बाप दे ज़िम्मे इस दौर दे मुताबिक 22 लाख रुपया कर्ज सी, मैं ओ ला दिता। ते फिर मैं हर साल हज दे दौरान ऐलान करता सी कि मेरे बाप दे कोलों जिन्ने पैसे लेने सन ओ मेरे नाल गल करे। मैं एक साल भी देंदा रहा, दूसरे साल भी मैं पैसे दिते, तीसरे साल भी मैं दिते, 4 साल मैं मुसलसल हज दे मौके ते ऐलान करदा रहा ते पैसे मैं देंदा रहा। ते उस दे बाद मैं बाप दे माल विचों अल्लाह दे रास्ते ते सदका भी कर दिता, वसीयतां ते अमल भी कीता। इस दे बाद मैं वेखिया ते मेरे कोल 1 करोड़ ते 2 लाख मौजूद सी। आज वेखो ना, 20-25 साल पहले जाओ ना, 30 साल 40 साल घर दे विचों एक कमान वाला हुंदा सी, सारे खान वाले सन। हुण सारे कमान वाले ने, पूरी फिरनी पैंदी। ये हराम दी नहूसत है कि जदों बंदे ने खाना है रिज़्क़े हराम ते ओदे विच बरकत नहीं, नेकी दी तौफीक नहीं। बंदे नू गुनाहां दा शौक होएगा, नेकी तू दूर भजेगा। हराम माल दी ये नहूसत है कि अल्लाह नेकी दी तौफीक छीन लेंदे ने। असी ते आने बई पा लई कोठी, ला के ठगी, उत्ते लिख दिता मिन फजली रब्बी। आ मैं बुखारी पढ़ा, ए कौन ने? इन्हां अब्दुल रहमान बिन औफ कहंदे ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बहुत बड़े ताजर सन। जदों साडे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए ते हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने भी मदीने आने दी तैयारी कर लई, पर रास्ते दे अंदर काफर दुश्मन खड़े ने, उन्होंने दीवार बना दी ते बीवी नू भी अलग कर दिता, सवारी भी उन्हां ले लई और आप दा बेटा भी छीन लिया। ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ अकले मदीने पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दा दीदार कीता। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं उन्हां किस्मत वाले मुकद्दर वाले सहाबा दी अजमत नू सलाम करा कि जिन्हां ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दा बार बार दीदार कीता ते अखां ठंडियां कीतियां ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने नाल लाया ते फरमाया कि की बनिया मैनू कारगुजारी सुना। ते अर्ज कीती अब्दुल रहमान ने कि आका जान मेरे कोलों सवारी भी ले लई दुश्मना ने, मेरी बीवी भी ले लई, मेरा बच्चा भी ले लिया, मैं कल्ला तुहाडे कोल पहुंचिया। ते आपने फरमाया अब्दुल रहमान दुख ते होया होएगा। ते हजरत अब्दुल रहमान ने अर्ज की आका जान दुख ते होया सी, पर जदों तुसी सीने नाल लाया सारे दुख दूर हो गए ने। अल्लाह
अल्लाहु अकबर कबीरा। ते आपने फरमाया मेरे यारो ए तुहानू पता है ना अब्दुल रहमान ए बहुत बड़ा ताजर सी, अज ए तने तनहा इत्थे आया है। दीन इस्लाम दी वजह तो हर चीज दुश्मना ने छीन लई है। हुण तुसी खड़े होवो, एक बंदा खड़ा होया ते अर्ज करदा सोनिया मैं अपनी एक बीवी नू तलाक दे के अब्दुल रहमान दे नाल निकाह करा देना। कुर्बान जाइए सहाबा दी असमतों ते मदीने वाले अंसार दी असमतों। इसलिए मैं कहना अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा के ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। ए मेरे नबी दे यार ने अज गल करिए अल्लाह दे राह ते खर्च करन दी ते 100 सोचा आन लग पैंदियां ने। अल्लाहु अकबर दूसरा खड़ा हो गया, आका जान मैं अपनी दुकान अब्दुल रहमान नू देना, आका जान मैं अपना घर अब्दुल रहमान नू देना। ते हजरत अब्दुल रहमान की फरमांदे ने फरमाया तुसी अपना मकान ते दुकान कोल रखो, सिर्फ मैनू बाजार दा राह दसो। जी ए बाजार है। आपने घी ते पनीर दा काम शुरू किया, अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई, जिन्ना ताजर ईमानदारी दा मुजाहरा करेगा ना अल्लाह ओदे माल विच उन्नी बरकत पाएगा। जिन्ने भी तुसी ताजर बैठे हो, जो गाहक नू दसो ओ ही दियो, और जदों भी चीज दियो अपनी चीज दा ऐब बयान करो, अल्लाह बरकत देगा। और नफा जिन्ना हो सके घट लो, अल्लाह बरकत देगा। घी ते पनीर दा काम शुरू किया ते फिर अल्लाह ने इन्ना रिज़्क दिता कि जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमाया ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने फरमाया कि नबी दियां बीवियां ए ते मेरियां मावां ने, ते मैं ऐलान करना कि नबी दियां सारियां बीवियां दियां घरां दा खर्चा मैं देंगा। और जदों आप दुनिया तू गए ने 1000 घोड़े मौजूद सन। तवज्जो कर, ए हलाल दियां बरकतां ने, ए दयानतदारी दियां आव गल्लां ने, ए दयानत ते सच बोलन दियां बरकतां ने। गौर करना 1000 घोड़े, 3000 बकरियां और 100 ऊंट, और नकदी दा हिसाब ही कोई नहीं। सोना इतना ज्यादा कि तारीख दे अंदर लिखे है कि कुआड़े दे नाल वड्डिया गया। जिवें बंदा कुआड़े नाल नहीं लकड़ी टुकदा इंज। और फिर आप दियां 3 बीवियां सन ते 8वां हिस्सा हुंदा बीवी दा, 8वां हिस्सा बीवी दा हुंदा। गाय दे सिर दे बराबर हर बीवी नू सोना आया, 8वां हिस्सा हर बीवी नू इन्ना इन्ना। ए मेरे भाइयों हलाल दियां बरकतां ने, अल्लाह ने हलाल ते पकीज़ा माल दे अंदर बड़ियां बरकतां रखियां ने। आना मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ा, तेरे ईमान नू ताजा करा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मिम्मा रज़क़नाकुम। फरमाया असी गल करने ईमान वालियां दे नाल, जिन्हां ने मैनू मन्निया, मेरे नबी नू मन्निया, जिन्हां ने आखरत ते ईमान लियांदा, जिन्हां ने मेरियां किताबां ते फरिश्तियां ते ईमान लियांदा। असी गल करने उन्हां दे नाल। ऐ ईमान वालिओ, अल्लाह ने गोया रिश्ता याद कराया। हाय हाय, रिश्ता याद कराया। जिवें एक बंदा अपने बेटे नू कहंदा है
ऐ मेरे जिगर दे टुकड़े, ऐ मेरी जान, अल्लाह ने रिश्ता याद कराया। फरमाया ऐ ईमान वालिओ, असी तुहानू जो रिस्क दिता है तुसी इहदे विचों पकीज़ा माल खाओ, हलाल ते तय्यब माल खाओ, हराम तू बचो। एक बुजुर्गां दे बारे आउंदा है, फरमांदे सन कि मेरा ना बाप फौत हो गया ते मैं ना बाप दी कबर ते जांदा सी, उत्थे दुआ करके आउंदा सी, पढ़ के बख्शदा सी बाप नू। एक दिन मैं उत्थे बैठा, हाले ना हनेरा सी, तवज्जो पूरी करना, फजर दा टाइम नहीं सी होया, रोशनी नहीं सी, ते एक कबर दे विचों चीखो पुकार दी आवाज है। कहंदा जिवें जिवें सवेरा हुंदा गया ना, चीखो पुकार कम हुंदी गई। मैं डरिया सी, जिदी कबर सी मैनू ओदा इल्म सी। मैं आया, पुछया, उन्होंने आख्या कि ए बंदा ते पहली सफ दा नमाजी सी, नमाजा पढ़दा सी, ज़कात भी देंदा सी, नेक अमाल भी करदा सी। जी फिर की गुनाह है जिदी वजह तू चीखो पुकार दी आवाज आ रही है दी कबर दे विचों? मेरे भाइयों, जिवें नमाज फर्ज है ना, रोजा फर्ज है, एवें रिज़्क़े हलाल भी फर्ज है। ये मामूली ना समझो। ते कहन लगे कि इनू ना अल्लाह ने बड़ा माल दिता सी, ये बूढ़ा हो गया, लोगों ने आख्या तेरे को इन्ना सरमाया है, काम तू कर नहीं सकता, सानू दे, साल बाद इन्ने तेनू नाल देंगे, फलानी जगह ते रख, नाल सूद बनेगा। इन्हें वो काम शुरू किया। इस वजह तू एदियां नमाज़ां एदे काम नहीं आईयां, एदियां तहज्जुदां एदे काम नहीं आईयां। रिज़्क़े हराम दी वजह तू इनू अजाब हो रहा है। मेरे भाइयों, अज भैणां दा हक मारिया जा रहा है, तरह तरह दे हराम माल दे सबब बने ने। ऐ जी तुसी अकाउंट बनाओ, विच 1000 रखो, तुहानू 50 मिनट रोजाना मिलेगा, ये भी सूद है। बड़ियां शक्लां ने, कुफार नू पता है, कुफार दी साजिश है कि जदों ये हराम खाणगे ते इन्हां दियां इबादतां कबूल नहीं होणगियां। आ ना फिर इस गल ते मैं दलील दिया मुस्लिम शरीफ दे अंदरों कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसदा मफहूम है कि एक बंदा सफर करदा है, हज लई आउंदा है, बड़ा लंबा सफर करदा है, जंगलात दा भी सामना करदा है ते ओदा चेहरा गुबार आलूद हो जांदा है, परा गंदा हालत हो जाती है, ते काबा शरीफ दे गिलाफ नू पकड़ के कहंदा है हाथ उठा के, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ते अल्लाह फरमांदे ने असा तेरी दुआ कबूल नहीं करनी। या रसूल अल्लाह आखो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदी दुआ क्यों नहीं कबूल हुंदी? ते फरमाया कि ओदा खाना हराम, ओदा पहनना हराम, ओदे जिस्म दे अंदर हराम ग़िज़ा है, ओदी दुआ किवें कबूल हो सकती है? जे बंदा हराम खावे ते ओदी वजह तू ओदी ये नहूसत है कि बंदे दी कोई इबादत कबूल नहीं हुंदी, दुआवां कबूल नहीं हुंदियां। मुस्लिम शरीफ दे अंदर है कि जेड़ा बंदा हराम माल दा सदका करेगा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हराम माल दे नाल पड़न वाला जिस्म मुस्लिम शरीफ दे अंदर है कि वो जहन्नम दे अंदर जाएगा, वो जहन्नम दे अंदर जाएगा जेड़ा हराम माल दे नाल। दुनिया मेरे भाइयों गुजारे दी जगह है, इत्थे थोड़ा खा लो, हलाल खा लो। हर टाइम ये सोचो कि जेड़ा मैं खा रहा ये हराम ते नहीं। मुश्तबे चीज जिदे ते शक है ओदे तो भी बचो।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐ ਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਲੀਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1500 ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਮਝ عطا ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੋ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਕੜੋ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਬਣੇਗੀ। ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੇਗਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰਾਮ ਖਾਣ? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਹਲਾਲ ਤੇ ਪਕੀਜ਼ਾ ਮਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਦਕਾ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ इंशाअल्लाह ताला मसाजिद दे आदाब और फजाइल ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ।